GST کے اوپر بات ہوگی کہ اس سے فسکل میچ لے رہی ہوں. نہیں ہر چیز آپ کے پاس ہے. آڈیو کو ایڈٹ کر کے کٹ کر کے لگا کے میں دیکھ رہا ہوں میرے اوپر میڈیا پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. آڈیو لیک کی دلدل خیبر پختونخوا میں ہلچل. مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی چھٹی. مبینہ آڈیو میں اجمل وزیر اشتہاری ایجنسی کے نمائندے سے کمیشن پر بات کرتے سنے گئے. وزیر اعلیٰ محمود خان کا ایکشن. چیف سیکرٹری کو انکوائری کا حکم. معاملے خصوصی کامران بنگش کو اطلاعات کا اضافی چارج دے دیا گیا. کہتے ہیں فورنسک میں اجمل وزیر بے قصور ثابت ہوئے تو دوبارہ ٹیم کا حصہ ہوں گے. اجمل وزیر نے تمام الزامات مسترد کر دیے. پرائم منسٹر کی جو کمٹمنٹ ہے کہ وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح ایک اس پہ بندے پہ نظر رکھی ہوتی ہے. انفرادی طور پہ کوئی اگر اس کو کمپرومائز کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں نہ عمران خان کی حکومت میں. وزیر اعظم نے ایک پر نظر رکھی ہے. منشور کی خلاف ورزی کرنے والے کی پارٹی میں جگہ نہیں. وزیر اطلاعات شبلی فراز کا اجمل وزیر کے آڈیو پر رد عمل. کہتے ہیں پاکستان اور کرپشن ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ہم پاکستان اور اپوزیشن کرپشن کی نمائندگی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کا کرمنل مافیا سے گٹھ جوڑ تھا. ہمارے پریشر سے GIT رپورٹ پبلک کی گئی. اپوزیشن کا مقصد وزیر اعظم کو نشانہ بنانا ہے. سے کراچی میں کوئی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. کراچی الیکٹرک پرائیویٹائز کیا گیا ہے. کراچی پرائیویٹائز نہیں کیا گیا. اوور بلنگ کا معاملہ ہے. اسے میں خود نیپرا کے پاس لے کر جاؤں گا. اس کی آڈٹ کروائیں گے. کراچی میں کل سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. وفاقی وزیر اسد عمر کا بڑا اعلان کہ الیکٹرک کو اضافی گیس اور فرنس آئل فراہم. اسد عمر کہتے ہیں کہ الیکٹرک کی نجکاری کی ہے, کراچی کی نہیں. تمام تر مدد کے باوجود معاملات نہیں سدھرے تو قانونی راستہ اختیار کریں گے. گورنر سندھ نے کہا اوور بلنگ کا معاملہ نیپرا میں لے کر جاؤں گا. زائد بلنگ ثابت ہوئی تو کہ الیکٹرک کو پیسے واپس کرنا ہوں گے. تحریک انصاف کا کہ الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر 6 روز سے جاری دھرنا ختم. حکومت کا اور گورنر کا اور اسد عمر کا کوئی اعتبار ہوتا تو یہ دھرنا منسوخ کر چکے ہوتے. اور ظاہر ہے کہ ان کو گرمی بہت لگ رہی تھی PTI کے لوگوں کو, اس لیے انہوں نے اب اس کو وائنڈ اپ کرنا ہی تھا. یہ کہنا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, اس کا مطلب اعلانیہ تو ہوگی نا. کراچی میں بجلی بحران پر جماعت اسلامی میدان میں. شارع فیصل پر دھرنا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں گرمی زیادہ تھی اس لیے PTI والوں نے دھرنا ختم کر دیا. اسد عمر کے اعلان پر بھی طنز. کہا غیر اعلانیہ نہیں تو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تو ہوگی. وزیر اعظم نے کراچی دشمنی میں بجلی مہنگی کی. حکومت پر اعتبار ہوتا تو ہم بھی دھرنا منسوخ کر چکے ہوتے. مظاہرین کی دھرنے کے مقام پر ہی نمازوں کی ادائیگی. بینکنگ اور فائنانس سیکٹر کے ایشوز کو دیکھا گیا. لوگوں تک آسان قرضوں کی سہولیت ہے اس کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے. فیصلہ کیا گیا کہ ڈیجیٹائزیشن کو بڑھایا جائے. معیشت کے ٹیک آف کے لیے آؤٹ آف دی باکس سولوشن ڈھونڈنا ہوں گے. وزیر اعظم کا معاشی تھنک ٹینک کے اجلاس سے خطاب. عمران خان کہتے ہیں کورونا نے عالمی معیشت کے ساتھ پاکستان کو بھی متاثر کیا. حکومت نے پہلے دن سے متوازن حکمت عملی اپنائی. غریب طبقے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے امداد دینا پہلی ترجیح ہے. احساس پروگرام کا دائرہ مزید ضرورت مندوں تک پھیلانا ہوگا. تعمیرات پیکج کا مقصد روزگار کے مواقع کے ساتھ معیشت کے پہیے کو چلانا ہے. وزیر اعظم کی بینکنگ فائنانس سے متعلق تھنک ٹینک کی تجاویز کی تعریف. 2012 کے آپریشن کے خاتمے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر رابطہ کیا ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ قائم علی شاہ بھی وہاں گئے, فریال صاحبہ بھی گئی. وفاقی وزیر علی زیدی نے عزیر بلوچ کے ساتھی حبیب جان کی تہلکہ خیز ویڈیو ٹویٹ کر دی. حبیب جان کے مطابق پیپلز پارٹی نے عزیر بلوچ کو راضی کرنے کے لیے 5 کروڑ روپے دیے. ایک گروپ IG سندھ تک کے ٹرانسفر کرتا تھا.
आसिफ जरदारी चाहते थे उनके मुंह भोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़े, वेस्ट टफी के आने से झगड़े की बुनियाद पड़ी। अली जैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी का मुजरिमों से गठजोड़ सबके सामने आ गया, चीफ जस्टिस नोटिस लें। पायलट के मशकूक लाइसेंस पर इथोपियन एयरलाइन ने भी वजाहत मांग ली। सिविल एविएशन अथॉरिटी से एयरलाइन में खिदमात अंजाम देने वाले 5 पाकिस्तानी पायलट की असनाद और लाइसेंस की तफसील मांगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जाली लाइसेंस, डिग्रियों और मौसली से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। एहसन इकबाल कहते हैं इथोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट को तैयारे उड़ाने से रोक दिया। पीटीआई वालों शख्सी जहर से निकलकर मुर्दा सोचो। शहबाज गिल कहते हैं ये सब आपके कारनामों का नतीजा है। पीआईए को तबाह और जाली लाइसेंस पर भर्ती करने वाले आज शोर मचा रहे हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह कादरी के खिलाफ नैब तहकीकात का दायरा वसी। हज की इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तिगियों की छानबीन का फैसला। 2 साल की इश्तिहारी मुहिम का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। वफाकी वजीर के खिलाफ सरकारी इमारत बिजनेस पार्टनर को किराए पर देने का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। सिर्फ मेरी 4 एकड़ जमीन है, बाकी मेरे कजन है, मेरे भाई हैं और हमारे दूसरे अहबाब हैं, उनकी जमीन है इसके अंदर, और वो भी 1-1 इंच लेजिटिमेट है। मलीर की 257 एकड़ जमीन पर कब्जा और बेचने का इल्जाम। एंटी करप्शन के बाद नैब ने भी हलीम शेख के गिर्द घेरा तंग। डिप्टी कमिश्नर मलीर से तफसीलात तलब। पीटीआई एमपीए कहते हैं सारे केस पीपल्स पार्टी ने बनाए। 1-1 इंच कानूनी है, सिर्फ 4 एकड़ मेरी बाकी जमीन रिश्तेदारों की है। अदालतों से क्लियर हूँ, नैब बुलाएगा तो सारे सबूत फराहम कर दूंगा। The 25th memorial anniversary of the genocide that took place in Srebrenica. I still feel the shock how such a thing could have been allowed by the world community. वज़ीर आज़म इमरान खान का सर्बरेस्का में कत्लेआम के 25 साल पर पैगाम। कहते हैं सर्बरेस्का में कत्लेआम मेरे लिए आज भी सदमे का बाइस है। आलमी बिरादरी ने कैसे ये कत्लेआम होने दिया। आज भी 8 लाख भारतीय फौजियों ने 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बना रखा है। हमें मकबूजा कश्मीर में भी कत्लेआम होने का खदशा है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। कपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान मुताबिद नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। लॉकडाउन के मज़बूत असरात। कोरोना से अमवात में कमी। 24 घंटे में मजीद 65 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 5123 हो गई। कोरोना के 4042 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट बार एफबीआर को दी गई हिदायत पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार का ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन का दौरा। ट्रेन के आगाज की तैयारियों का जायजा लिया। उस्मान गुजार कहते हैं तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका। ऑरेंज लाइन चलाकर साबिक हुकूमतों के मंसूबे बंद करने की रिवायत खत्म कर रहे हैं।
लंदन में मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तानी आमों की याद सताने लगी। 8 डब्बे मंगवा लिए। हुसैन नवाज के दफ्तर में आम के डब्बे पहुंचा दिए गए। हुकूमत का AOBI के पेंशनर्स के लिए ईद से पहले डबल रिलीफ, बढ़ाई गई पेंशन ईद से पहले देने का फैसला। जुल्फे बुखारी कहते हैं AOBI और यूटिलिटी स्टोर्स के दरमियान मुआहदा हो गया। पेंशनर्स आटा, चीनी, चावल, घी की खरीदारी पर रियायत हासिल कर सकेंगे। पार्लियामेंट लॉजेस में लगे 12 डोम कैमरों में से 7 खराब, 35 स्टिल कैमरों में से 3 नाकारा हैं। पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी से मुतालिक सेनेट कमेटी को पेश। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफ, किसी ब्लॉक में भी वॉक थ्रू गेट नहीं। रिपोर्ट में इजाफी रास्ते बंद करने और FC तैनात करने की तजवीज। PTA की पाबंदी गेमर्स को ना रोक सकी। PUBG के दीवाने VPN के जरिए गेम खेलने में मसरूफ। गुज़िश्ता रोज गेम खेलने में मसरूफ नौजवान ने खुदकुशी कर ली थी। ईद कुर्बान के लिए शहर शहर जानवरों की मंडियां लग गई। लाहौर और कराची में व्यापारियों का मवेशी मंडियों में सहूलतें न मिलने का शिकवा। मुल्तान जानवरों की ऑनलाइन फरोख्त। मुल्क भर में विफाकुल मदारिस के तहत सालाना इम्तिहानात का आगाज। मसाजिद के शहर और खुले मकामात को इम्तिहानी मराकज बनाया गया। कोरोना के पेश नज़र तमाम SOPs पर अमल। 4.25 लाख तलबा और तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं। तुर्की की काउंसिल ऑफ स्टेट ने आया सोफिया की म्यूजियम की हैसियत खत्म कर दी। सदर एर्दोगान ने इमारत को मस्जिद में तब्दील करने के सदाती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अदालती ऐलान के बाद लोगों ने शुक्राने की नफल अदा किए। आया सोफिया मस्जिद में नमाज की बाज़ाब्ता अदायगी 24 जुलाई से शुरू होगी। चीन के जुनूबी और वस्ती इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सड़कें और पुल बह गए, मकानात पानी में डूब गए। हादसात में 140 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तानी निजात डॉक्टर का एजाज। इंग्लैंड की रेस द बीच मुहिम में डॉक्टर समरा अफजल की खिदमात का एतराफ। इंग्लिश क्रिकेटर क्रिस वॉक्स की शर्ट पर नाम दर्ज। समरा क्रिकेटर नासिर जमशेद की अहलिया हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस। वुस्टर में कौमी टीम का 2 रोजा इंटर स्क्वाड मैच जारी। मैच का मकसद खिलाड़ियों को प्रैक्टिस फराहम करना और कंडीशन से हमाम करना है। दुबई में रौनकें लौट आईं। समर सरप्राइज फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। बुर्ज खलीफा को रोशनियों से सजा दिया गया। डांसिंग फाउंटेन, आतिशबाजी ने माहौल को मजीद शहर अंगेज बना दिया। फेस्टिवल 29 अगस्त तक जारी रहेगा। वाव से वोट, वोट का वाव जेरे तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेरे तालीम वजीरे तालीम बन जाता है। फिल्म, टीवी, रेडियो और थिएटर के मारूफ अदाकार महमूद अली की 12वीं बरसी। उनके मशहूर ड्रामों में खुदा की बस्ती, इंतजार फरमाइए, चचा छक्कन, तालीमे बालगा शामिल हैं। जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए।
और उर्दू के नामवर गजल गो और गीत निगार कतील शफाई को मताहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। कतील शफाई ने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत लिखे।